जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं विनी आंटी को, जिन्हें गुरु जी स्टाइलिश आंटी के नाम से भी बुलाते थे। आंटी, आप आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। संगत जी, मैं हमेशा शुरू करती हूँ अपना सत्संग की वी कैन नेवर थैंक गुरु जी इनफ एवर। बहुत बहुत मेहर है गुरु जी की हम सब पर। सो आवर जर्नी स्टार्टेड with Guruji in 1996 in Chandigarh, when Guruji was in Chandigarh. It was not that we were seeking, we were looking for a guru. No, it was just life was going on. तो वेरी कैजुअली मेरी एक दोस्त ने कहा कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं 33 सेक्टर में, तू चलेगी? और मैं जब एज वाज ग्रोइंग अप, मैं हमेशा सोचती थी कि मुझे एक गाइडिंग लाइट चाहिए जिंदगी में। आई नेवर शेयर दैट विद एनीवन। मैं अपने मन में ही सोचती थी, आसमान को, तारों को, सितारों को देख के बस एक गाइडिंग लाइट मांगती थी। आई डोंट नो व्हाट इट वाज, बट सिंस चाइल्डहुड। सो मैं जब गुरुजी के पास फर्स्ट टाइम गई, एज सुन एज आई एंटर्ड द दरबार, I didn't know anything about Guruji at all. Only thing I knew that my friend is taking me to some Guruji. And I entered, and the moment I entered, I could hear very loudly in my ears, "This is your guiding light. This is your guiding light." At that time, it was kind of, I was, uh, not sure I'm hearing the right thing, but I was, and it happened. It said, "This is your guiding light." I entered, and Guruji, as we all know, is very, very simple. I went there and I just want to take his blessings, because when we went there, it was not like you want to touch his feet, you touch his feet, you don't want to, it's okay. You want to cover your head, you cover, you don't want to, it's okay. So बहुत simplicity थी, which is probably what connected me to Guruji instantaneously. So मैंने उनके चरण स्पर्श किए. The moment I touched his feet, he says, कल्याण किता, अपने माँ बाप को लेके बड़े चंगे है. And honestly, मैं तो अपना दिमाग चला रही थी, and I was thinking ऐसे इनको कैसे पता, मैं तो first time आई हूँ. And the moment my thought got over, Guruji looked at me again and he says, मैं कह रहे ना दोनों बड़ी चंगी आत्मा थे, लेके आ. तो मैंने कहा जी गुरुजी. गुरुजी बहुत स्पीड से बोलते थे, बहुत तेज ठेठ पंजाबी बोलते थे. I being a Punjabi also, I would miss out on certain things sometimes. So मैंने कहा जी गुरुजी, and I sat there. He made me sit next to him at his feet, and आंखों में पानी आता ही रहा. Next 2, 3, 4 hours, I don't know how long, we were just sitting and आंखों से पानी आ रहा था. समझ नहीं आया क्या है, पर इतना है कि बहुत 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 अच्छा लग रहा था वहां पे. Just being there, it was, I don't think I can ever describe it, but it was really beautiful feeling. So I sat there. There was chai prasad, there was langar prasad, and around I think midnight or so, maybe past midnight, Guruji ne chutti kar di. And those days, it was not 2 hours. Nothing was 2 hours. It was like, could be 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hours. We don't know. Guruji ne jab आज्ञा देनी है तभी हम जाते थे. We could never leave without his आज्ञा. So I think रात को मैं 12:30-1 बजे घर गई, and I told my mom in the morning, ऐसे ऐसे गुरुजी बुला रहे थे आपको, कह रहे थे माँ बाप को लेके आना, बहुत चंगे हैं, तो आप चलोगे? मैं मॉम नहीं आ रहे समाजी, ऐसे मम्मी तो कभी कहीं नहीं जाएंगी. पापा इज वेरी वेरी सिंपल एंड बहुत सिंपल है पापा, वेरी कंटेंटेड मैन. सो आई थॉट डैडी वुड स्टिल गो वेयरएवर. सो आई आस्क्ड माय मॉम इन द मॉर्निंग, ऐसे मम्मा चलोगे? सो शी सेज हाँ हाँ जरूर चलेंगे. फॉर मी इट वाज अ मिरेकल, मम्मा सेइंग यस टू मीट एनी गुरु, since we didn't know anything about Guruji. So next evening when we went, all of us went to Sector. We were like 21 and Guruji was in 33. So literally 5-7 minutes away. So हम वहाँ पहुंचे और मम्मी ने गुरुजी को प्रणाम किया खड़े होके, because and she bowed down but she couldn't really bend totally. She has slipped disc for like 14-15 years plus. So she told गुरुजी मैंने माफ करना, मैं हेठा नहीं बैठ सकती. तो गुरुजी ने बहुत स्वीटली मम्मा को देखा और कहते, मम्मा को कहते थे वो स्टाइलिश आंटी, कहते स्टाइलिश आंटी तेरा कल्याण किता, बैठ जा हुन. And my mother sat on the floor for the first time after 14 to 15 years. That was our Guruji, instantaneous. I mean, don't even know what happened. It was just in a jiffy. वो बैठ गए और नेक्स्ट 3-4 घंटे वहीं बैठे रहे. चाय प्रसाद चला, लंगर प्रसाद चला, और पापा को देख के एकदम कहते हैं ये तो दीवाने हैं, दीवानों को ना घर चाहिए, प्रेम की डगर चाहिए. तो पापा बहुत सिंपल, बहुत कंटेंटेड. एंड गुरुजी को ऑफ कोर्स जानी जान, पहली बार तो हमें नहीं पता था क्या है. फर्स्ट
I think for a short while. But slowly we figure out हम कहीं ordinary जगह पे नहीं है, हम कोई संत के पास नहीं है, हम कहीं और हैं. And it felt like that. I'm not talking of physically, but energetically it felt very different. So हम बैठे रहे. अब this was our routine. पापा मामा हम तो बॉम्बे रहते हैं. My sister and I live in Bombay and बाकी फैमिली चंडीगढ़ में थी तब. तो I have no idea उनको क्या हुआ, because my parents, life was very social life and they were very सेवा oriented, because वो NGOs के साथ काम करते थे, वो लायनस क्लब के साथ थे, वो leprosy patients की सेवा करना, orphanage में जाना, old age home में जाना, that was their routine. And mom was a working mother and papa of course was working too. But जब गुरुजी और हमारे घर में almost every second day we had formal dinners at our place. So हमारी बहुत tight schedule होता था. In fact, sometimes I would joke with mom. I said, "Mom, बाहर guest house लिख दो, because we don't have time to talk to each other. We always very busy with the family and the friends and everyone." और जब गुरुजी से मिले, I don't know what happened. बहुत organically सब चीजें जैसे जो नहीं होनी चाहिए नहीं थी. और every evening was for Guruji. Every evening. It was not 4 days, 5 days. It was 7 days a week we used to go there. There was no chutti at all. Every day we go, and it was a pull. So Papa aate the office se and they would just freshen up and then go to Guruji's. It was a routine for them. बहुत अच्छा लगता था. और उस टाइम ना सत्संग गुरुजी ने सुनाने देते थे, because daddy, I remember at some point he started saying, "गुरुजी मैं तुम्हारी थोड़ी सी उस्ताद करना चाहता." डैडी कहते बैठ जा, गुरुजी कहते बैठ जा, तू मेरी एडवर्टाइजमेंट करनी है, वो कहते थे. तो बैठ जाते थे. बट आई नो एट सम पॉइंट ही स्टार्टेड सेइंग, वो ऐसे इशारा करते थे कि अच्छा तू अपना इसको सुना दे, तू अपना सुना दे, बिकॉज कल्याण तो गुरुजी कर रहे होते थे. बट हमें कितनी समझ आती है, देयर वाज अ टाइम व्हेन पापा स्टार्टेड शेयरिंग सत्संग. सो गुरुजी से अच्छा ओ वाला सुना, अच्छा ओ वाला सुना. सो संगत जी वी जस्ट फॉरगेट वो क्या क्या हमारे लिए कर रहे हैं, वो क्या मतलब इट्स हैपनिंग ऑल द टाइम, बट हाउ मच वी रियलाइज that we have to figure out. So गुरुजी ऐसे कहते थे, तू ए नहीं सुनाया, तू ओ नहीं सुना. Then we realize, my God, गुरुजी कितना कल्याण कर रहे हैं, और हम तो I don't think we can ever thank him enough. So हमारी जिंदगी अच्छी चल रही थी. एक दिन ऐसे गुरुजी के पास बैठे थे, तो since every day was our routine was spending time with गुरुजी. तो एक दिन बैठे थे, तो मम्मी पापा को गुरुजी ने इशारा किया, जैसे he could see everywhere. So we always took advantage कि हाँ हमें नहीं, वो हमारे जो साथ में बैठे हैं उनको बोल रहे हैं जाने के लिए. हम because we didn't feel like leaving. एक बार जाते थे ना, वहां से मन नहीं लगता था कि आप कितनी मर्जी घंटे बैठो कि उठ के जाओ. And we are the people who sleep by 9 o'clock, but we would be there by 2 till 12, 1, 2, 3, depending on जब गुरुजी की मौज जब तक है वहां बैठ. अरदास रहती थी, गुरुजी जाने मत देना, ये बिठाई रखो. बहुत अच्छा लगता था. सो एक दिन ऐसे बैठे थे, तो मम्मी पापा को इशारा किया, बट उन्होंने एज यूजुअल हमने कहा नहीं नहीं हमें नहीं, साथ वालों को कह रहे हैं. एंड घर चले गए. उसके बाद अराउंड मे बी 12-1 बजे जब फाइनली गुरुजी से अच्छा चलो दीवान साहब होगी छुट्टी, तो पापा को वो कभी कभी दीवान साहब कह देते थे, दीवान साहब चलो होगी छुट्टी. तो फिर देयर इज नो ऑप्शन, बिकॉज अब आ गया हुई है, जाना हुक्म है, जाना पड़ेगा. सो वो घर पहुंचे, और माई ब्रदर हैड लेफ्ट मैसेज ऑन द आंसरिंग मशीन. एंड कि मैं पापा सुबह ने, मैं रात को नहीं आ रहा, मैं सुबह आ रहा हूँ, which was very unlike my brother. So when morning when he came, भैया came home, and उसके ना माथे पे कुछ स्क्रैचेस थे, झरीटे थी, और थोड़ी शर्ट गंदी थी. पापा ने कहा क्या हुआ, कहते पता नहीं हम कैसे बचे हैं डैड. They were coming, they'd gone to Himachal. His friend had gone, I think, from Canada to Chandigarh for some time, and he'd taken him to Himachal. And they were coming back in the night, and there's this trailer which was in front of them, and he braked suddenly, and उनकी गाड़ी ट्रेलर के नीचे चली गई. कहता मुझे भैया कहते मुझे पता ही नहीं कैसे मैं बचाऊं, मेरे आगे जैसे किसी ने हाथ रख दिया हो, नहीं तो. और मेरे फ्रेंड को माइनर फ्रैक्चर हुआ लेफ्ट आर्म में. एंड ही सेज गाड़ी पापा है ही नहीं, इट्स अ राइट ऑफ टोटली. तो उस शाम तो हाउ टू से शुक्राना, वी डोंट नो अबाउट गुरुजी मच दैट टाइम, ऑफ कोर्स. दिस इज प्रॉब्ली barely a month into meeting गुरुजी. एंड दैट इवनिंग जब मम्मी पापा गुरुजी के पास गए, द मोमेंट दे एंटर्ड, गुरुजी से स्टाइलिश आंटी तेरे पुत्र नु मैं बचा लिया. So that's when we realized Guruji saw everything happen at that time, and he saved Bhaiya. So he saved Bhaiya a lot of times, बहुत bless किया पूरी family को. It I think we used to be those days around 50-60 of us in sector 33 I'm talking about. बस occasion होते थे तो of course संगतें आती थी, which was basically Mahashivratri, Guruji's birthday and all. So those days we would get sanghas from all over. And Guruji used to say, he would not talk much, but one-liners.
यू नो घर घर मेरी जोत जलेगी, ये कहते थे जब वो 33 में थे। हमें समझ नहीं आया पूरी दुनिया में मेरे सत्संग होंगे, वो भी समझ नहीं आया कि कैसे, बिकॉज वी न्यू हम कितने हैं वहां संगत, but we are seeing it happening and way more what he said. So it's been a beautiful, beautiful, blissful journey with Guruji. And honestly, today I say we are alive because of Guruji. बहुत मेहर रखी है गुरुजी ने हम सब पर। इट्स नॉट दैट जब तुम जुड़ जाते हो तो तुम्हारे पास दुख नहीं आएगा, पर गुरुजी संभाल लेते हैं। इतना पता है दुख आता है वो अपने आप आपको literally he's holding you in his arms and he makes you go through it. But गुरुजी उससे से मैं 90% अपने ऊपर ले लेता हूँ, 10% से तुम निकलते हो। बट आई वुड से हम तो 1% ही निकल के चले जाते हैं बिकॉज ऑफ हिज मेहर, हिज ग्रेस। सो एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे तो गुरुजी ना, एज वी ऑल सीन, वो चिन पे हाथ रख के बैठ जाते हैं कई बार। सो गुरुजी बैठे हुए थे और मैं गुरुजी की बहुत निहारती थी, मैं देखती रहती थी गुरुजी को। तो मैं एंड गुरुजी स्माइल करते थे, मुझे पता था किसके मन में क्या है, तो मैं स्माइल कर रही थी। तो सडनली आई सॉ अ शिवलिंग ऑन हिज फोरहेड, ह्यूज शिवलिंग ऑन हिज फोरहेड। मैंने देखा और मैं देखती रह गई। एंड ऑफ कोर्स अ स्माइल केम ऑन माय फेस एंड गुरुजी ने सडनली अपना हाथ मत्थे पे रख लिया, लाइक जैसे छुपाते हैं ना वैसे। मैंने सिर्फ मन में कहा, मैंने कहा गुरुजी प्लीज अच्छे से देखने तो दो ना। Again, he put his hand on the chin and he's like, it's like देख ले जितना देखना है। And he had the smile on his face, that expression that देख ले जितना देखना है। So, सर झुक जाता था, कि कहाँ हैं हम? It's like the blank mind, sometimes we feel that, जब मेडिटेशन के ध्यान में कभी बैठे तो एक बार ब्लैंक होता है कुछ देर के लिए, उनके साथ हर पल ऐसे ही रहता था, कोई थॉट्स नहीं आती थी। Because all of us, everybody had families and all, but किसी को किसी का फिक्र नहीं, वो बस यहाँ आए हैं तो बस यहाँ से गुरुजी भेजे ना हमको। So before the लंगर तो हम बहुत आगे आगे गुरुजी को चिपक के बैठते थे, एकदम आगे। जब लंगर पर और गुरुजी जब आते थे गद्दी पे, अराउंड 7 o'clock he would come out, we will be there by 6:30। हम आधा घंटा पहले चले जाते थे और खड़े रहते थे कि गुरुजी अभी आएंगे। And before he would come out, before the door is open, you could feel his energy, that okay, now he's coming out। एंड आते थे और अपनी गद्दी पे बैठ जाते थे। तो फिर हम एकदम लाइन में लग जाते थे। तो ही वुड गिव अस कड़ा प्रसाद, वो एक हाथ से देते थे और संग जी हमारे दो हाथ में पूरा नहीं आता। आई स्टिल रिमेम्बर, ऑलमोस्ट वी टू बैलेंस इट आउट। हम बाहर जाके लिटरली मुंह से ऐसे खाते थे, फिर हाथ धोते थे और फिर वापस आके बैठ जाते थे। अभी हम थोड़ी देर ही बैठे होते थे, देन गुरुजी अगेन चलो हो जाओ शुरू, फिर हम लाइन में लग जाते थे। देन यू कुड बी ईटिंग दैट मच ऑफ बर्फी प्रसाद, लड्डू प्रसाद, 4-5 बार इतना सारा खाना। I don't think in normal when you're doing that you can have more than 1 or 2 laddus, but we would have like handful of laddus, handful of barfi prasad, and after that we would have langar prasad. पर ये होता था, but not one day, it was almost every day. So we would do that, but कभी दिमाग नहीं लगाया हम, मतलब चलता ही नहीं था, ऑनेस्टली दिमाग चलता ही नहीं था। सो एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे तो मम्मी पापा, आई थिंक वी वर इन बॉम्बे, तो मॉम डैड शेयर दैट कि वो बाहर निकले, आज्ञा दी गुरुजी ने। पहले तो उन्होंने हाथ से आज्ञा दी तो मम्मी पापा ने इग्नोर किया उनको। फिर गुरुजी ने फाइनली कहा चलो दीवान साहब छुट्टी हो गई। फिर वो चले गए, छुट्टी गए तो बाहर हमारी कार चोरी हो गई थी, जो तो पापा टोल्ड मॉम कि अच्छा आप ऐसे करो, गुरुजी के पास बैठो, मैं FIR लिखवा के आता हूँ। सो ममा वेंट बैक एंड सो गुरुजी तू फिर आ गई। तो मामा ने बताया कि गुरुजी हमारी ना गाड़ी चोरी हो गई है, तो इसलिए वो FIR लिखवाने गए हैं। गुरुजी ने एक सेकंड के लिए अपनी ना, एक पल के लिए आंखें बंद करके कहते तेरी कल गड्डी कल सवेरे इन्ने बजे ਇੱਥੇ मिलेगी ते आज दिन चीज़ां नहीं होंगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, which is भैया की Ray-Ban ग्लासेस से, आई थिंक पेजर होता था उस टाइम पे, पेजर था और म्यूजिक सिस्टम। ही सेड ये 3 चीजें नहीं मिलेंगी। तो वी सेड चलो लेट्स सी व्हाट। एंड नेक्स्ट डे एग्जैक्टली व्हाट गुरुजी सर, हमें पुलिस स्टेशन से फोन आया कि यहाँ आपकी गाड़ी पकड़ी गई, आप आ जाओ ले जाओ। एंड वो 3 चीजें गायब थी। सो वो शुक्राना करने गए गुरुजी को कि धीरे धीरे हमें पता चला कि ये कौन है ये। ऑफ कोर्स टुडे वी नो रबों के रब के साथ हैं हम सब। एंड ही यूज्ड टू से तुम मेरे हुक्म के बिना नहीं आ सकते, व्हिच इज अ फैक्ट। we may think whatever, we may apply our mind, but he said very simply, he said जहां जूते उतारते हो वहीं अपना दिमाग रख के आओ। वो कहते थे, हमें समझ नहीं आता था बिकॉज हम हर पल ऑनेस्टली दिमाग चलाते रहते। बट वो भी अब समझ आ गई एट सम पॉइंट कि जो करेंगे वो करेंगे। सो इट्स जस्ट दैट वी हैव टू बी अवेलेबल टू हिम, हिज ग्रेस, एंड let him lead our life, he will actually run our life। and he used to say ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ आओ मैं ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾਵਾਂਗਾ।
तब तो समझ नहीं आया था, but at some point later we realized कि यार हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं. We all know that, right? But we all think we are running our life. We like, I have to do this, I have to do that. No, it doesn't really work like that. And we realized that no, somebody up there is running our life. And of course now, at least Guru Sangat is aware that Guruji is running our life. And it's been beautiful, blissful with him. So एक दिन हम ऐसे ही बैठे थे, again 33 की बात है. I'm just sharing what, when we started a journey with Guruji. So in sector 33 में, so Guruji would call, certain sangat and say, "Aja mere haath daba de, acha mere pair daba de." So I would look at that and said, and we were like very few. So and I used to be barely in front of, right in front of Guruji, and he would never call me. So I said, Guruji, you're very biased. Like, when I feel like, doing seva, I want to, press your feet or hands or whatever. My thought gets over that day, and he says, "Aja, mainu pata hai tu mere haath se dabane aa jaye the." Sangat ji, I just pressed his hand, I think maybe for like 5 minutes or so. और मेरे हाथ से खुशबू गई ही नहीं next few days. I experienced that, of course, I thought maybe I won't wash my hands, I won't do this, but of course you do what you have to do. But वो हाथ से खुशबू ही नहीं गई. I don't know, 3-4 दिन वैसी ही खुशबू आती थी. So, धीरे धीरे we realize हम कहाँ हैं. सच्ची में I would say हम जन्नत में ही थे, जन्नत में, literally. So, एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे तो गुरुजी छुट्टी कर देते थे. Most of us would go by 12:30, 1 in the night. कुछ संगत फिर भी रह जाती थी, maybe 15-20 of them. I used to be very keen to know, मैं ये कैसे रहते हैं, इनके कर्म अच्छे होंगे कि गुरुजी के पास बैठे, हमें तो छुट्टी मिल जाती है. So मेरी अरदास कर दी फिर से. मैंने कहा, गुरुजी मेरा भी तो मन करता है आपके पास, like, जब तक सारी संगत बैठी है मुझे भी बैठना है. सिर्फ मन में अरदास. उस शाम को पापा की छुट्टी कर दी गुरुजी ने, अराउंड आई थिंक 11-12 बजे. And dad went home. We were very close to, we were in sector 21, so literally 5-7 minutes, and Papa went home. So Mama was there, my friend was there, of course, Sangat was there. And so around, I think, आधे एक घंटे बाद Guruji goes back to his room, and he comes out after like half or 40 minutes or 1 hour. And we were sitting on the carpet. So Guruji aake jaise, or he came back in his t-shirt and I think shorts. He was wearing his shorts or track pants. And आके जैसे कार्पेट पे आके आप लेट जाते हो ना, एक हाथ एक साइड पे, तो he just did that. और हम उनके पूरे भी surrounded and we were just sitting with him and talking just generally about life, like literally mundane things, I would say. गुरुजी अपना हमारा हालचाल पूछ रहे थे, हम गुरुजी से अपनी बातें बता रहे हैं जिंदगी की, which was very silly, but that's how we were, right? So गुरुजी बहुत विटी थे, कुछ फनी चीजें बताते रहते थे और इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था, बहुत. और वो हंसते रहते थे और हमें हंसाते रहते थे. He would turn totally pink, in his face. So ऐसे 1-2 घंटे ऐसे ही बैठे हुए थे. फिर उसके बाद गुरुजी कहते, चलो अभी 2:30 बजे, चलो हम लेक में चलते हैं सैर करने. That's my favorite place in Chandigarh for a walk. So मैं तो बचपन से वहीं जा रही थी. So we were very happy. ऐसे गुरुजी से, चलो बिस्किट और चाय भी ले लेना, कंटेनर ले लेना, हमारी पिकनिक हो जाएगी. So we all very happy. So we all went to the lake. I think we were maybe 20 of us and few cars. And once we reached there, now Sangatji, I walk very fast by default. For me, walking slow is an effort. मतलब तेज चलना मेरा normal है. And मैं बहुत तेज चलती हूँ. So हम वहाँ पहुंचे लेक पे, और मैं तब तक हम थोड़े बहुत सत्संग थोड़े सुने थे कि गुरुजी ने कितनी मेहर करी है. People who got cured of cancer, deaf, dumb, blind. We had heard all that. गुरुजी जमीन पे नहीं चलते, सब सुना था, पर हम दिमाग चला रहे थे. अभी भी I think पूरा विश्वास नहीं हुआ था तब तक. So that day when we reached the lake, Guruji was in the middle. A friend of mine was on the left side. I was on the right side. And Guruji को हमने जैसे कमर से पकड़ा था, गुरुजी ने हमें पकड़ा था. जैसे फ्रेंड्स चलते हैं ना मिलके, तो हम वैसे चल रहे थे. I wouldn't say चल रहे थे, हम तो भाग रहे थे और गुरुजी I think उड़ रहे थे. Considering I walk very fast, I couldn't cope up with Guruji's walk. So मेरे दिमाग में वो आ रहा था, हाँ गुरुजी जमीन पे नहीं चल रहे क्योंकि तो उड़ रहे हैं. And in the meanwhile, Sangatji, it starts raining. I can see it's raining. It's all wet. Not a drop of water on us. Not a drop. मतलब एक बूंद हमारे ऊपर पानी नहीं. और मैंने सिर्फ अपनी दोस्त को देखा. मैंने कहा, रोजी, बारिश हमारे ऊपर नहीं है. फिर मैंने गुरुजी को देखा. He was just next to me and I said, like, आप कौन हो? मैंने मन में सोचा. मैंने कहा, आप हो कौन? Because रब के अलावा ये कोई नहीं कर सकता. सिर्फ भगवान कर सकते हैं, जो हमने उस वक्त एक्सपीरियंस किया. And then गुरुजी का एक्सप्रेशन बहुत स्वीट, बहुत sweet smile, and which the expression was like, बुद्धू तुम्हें पता ही नहीं तुम रब के साथ हो. That expression, I still remember his expression till date, and his smile.
सो हम पूरा वॉक किया एंड गुरुजी जब भी जाते थे लेक, वहां मोर आते थे, नाचते थे और चले जाते थे। सो हम पूरा वॉक किया फुल, आई थिंक whatever 2.5 किलोमीटर्स लेक पे। वापस आके गुरुजी पैरापेट पे बैठ गए, क्रॉस लेग, सो ही वाज वेरी इंटेंस। मैं अभी भी अपना दिमाग चला रही थी तो मेरे को बुलाया, कहते इथे आ मेरे जूते सूंघ। मैंने उनके शूज स्मेल किए संगत जी, इतनी खुशबू उनके शूज से, इतनी खुशबू कि मेरा सिर झुक गया, कि कौन है ये। एंड देन ही कॉल्ड माय मदर, ही सेज स्टाइलिश आंटी इथे आ, तो मेरी तो नी सूंघ, लाइक स्मेल माय नेवल। और मामा ने करी और मुझे तो कहा नहीं, पर मैंने भी गुरुजी की नेवल स्मेल करी। उसमें से जैसे आपने होस पाइप में बहुत परफ्यूम डाल दिया हो, पता नहीं कितने लाख बॉटल्स डाली हो, वो होस पाइप से निकल रहा हो कॉन्स्टेंटली, वो उनके खुशबू आती थी। एंड आई वेंट अ बिट अहेड एंड आई टच्ड हिज स्टमक. It was like a baby's tummy, how it's soft and pink and tender. That was Guruji. So सर एकदम झुक गया, समझ नहीं आया कि, बट इतना है कि वो बहुत एलिवेटेड सी फीलिंग रहती थी उनके साथ हर पल। आप, आई डोंट नो वो क्या था उनमें, वो क्या ऑरा थी। एट दैट टाइम वी डिडंट नो, ऑफ कोर्स नाउ वी हैव सम आइडिया एट लीस्ट, कि हम बहुत ब्लेस्ड हैं, वी आर विद रबों के रब। आई वुड से दैट्स व्हाट आई हैव बीन सेइंग ऑल दीस इयर्स, ही इज रबों के रब। हम बहुत 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 ब्लेस्ड हैं कि हमें हुक्म से, मम्मी पापा के अच्छे कर्म थे, गुरुजी की मेहर की हम वहां पहुंचे और उनसे जुड़े रहे। और बहुत लोग आए उस टाइम पे संगत जी, और आके फिर कुछ बार, एक दो बार आए, इनफैक्ट माय ओन रिलेटिव दे केम, बट they never went back again. And then after 30 years or 20 years, they came back and then they realized what they missed. So ये हुक्म उनका होता है, ये तो हमने सुना है कि उनके हुक्म के बिना कुछ भी नहीं होता। बहुत कुछ गुरुजी वुड ऑलवेज शेयर, वो एक एक लाइन बोलते थे, बट बहुत प्रोफाउंड होती थी वो, बहुत डीप मीनिंग होते थे उनकी हर लाइन में। कुछ समझ आते थे उस टाइम में, कुछ शायद कुछ सालों बाद समझ आए, बट यू नो दैट्स अ फैक्ट। कुछ चीजें हमें आती है कि हाँ गुरुजी ने ये कहा था, दिस इज व्हाट। सो हम आई थिंक हमें अपने ऊपर बहुत 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 काम करना है टू अंडरस्टैंड अ बिट अबाउट व्हाट ही एक्चुअली केम फॉर। वो कहते थे जो मैं देना आया वो तुसी कोई मंग के राजी नहीं हो। हमें तो पता ही नहीं था क्या है ऑनेस्टली, बट देयर वर सम संगत हु वर probably who spend way more time with Guruji, and we know their satsangs also, of course. But this journey has been a very, very blissful journey with Guruji. So I would say, since he's made it very simple, to see ਇੱਥੇ आओ मैं ਤੁਹਾਡੇ काम करांगा, ये कहते थे गुरुजी। तब हमें समझ नहीं आया ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ आवांगे तो काम कैसे होंगे, but it happens. आप जो मर्जी करो, if you prioritize Guruji, things fall in place in life. It's a fact. This is our experience, is what I'm talking about. Because हम यही सोचते हैं कि हाँ चलो ये खत्म कर लो, ये खत्म कर लो, फिर हम सत्संग में जाएंगे ना। सत्संग प्रायोरिटाइज कर लो, बाकी ये सब हो जाता है। ये तो हमने भी बहुत we all learn with time, sometimes in a hard way, but we all learn, I guess, at the end of the day. So अब गुरुजी का जब तक चंडीगढ़ थे, whenever we went to चंडीगढ़, we live in Bombay now, my sister and me. So but तब बाकी फैमिली चंडीगढ़ में थी। So हम जब भी चंडीगढ़ जाते थे, of course गुरुजी मिलते थे, then गुरुजी of course shifted to Delhi, I think in Empire State. तो whenever we had to go to Chandigarh, we would stop in Delhi, meet गुरुजी, आगे लेके चंडीगढ़ जाते थे, and vice versa. चंडीगढ़ से जब बॉम्बे आना है तो दिल्ली गुरुजी का मत्था टेक के आना है, लाइक। तो एक दिन ऐसे पापा बैठे थे गुरुजी के पास, तो पापा ना गुरुजी के चरण चूमते थे हमेशा, चरण किस करके वो एक कोने में जाके बैठ जाते थे। तो एक पापा ऐसे कोने में बैठे थे, तो पापा के ऐसे ही आंसू आ गए थोड़े से, सो गुरुजी ने बुलाया, इथे आ। तो ऑफ कोर्स इतनी दूर बैठे हैं, बट थ्रू सेवादार को बोल के बुलाया, और पापा पहुंचे, कहते तो देख के कहते, गुरुजी न्यू ऑफ कोर्स, जानी जान दैट किसके मन में क्या है। इसे तेनू गुरु नाल बहुत प्यार है। तो पापा जी ने स्माइल देके कहा, गुरुजी सच्ची बोलूं, लव एट फर्स्ट साइट है। दैट वाज माय फादर। सो गुरुजी ने एकदम पिंक हो गए, बहुत स्वीट स्माइल दी। फिर एक सेवादार को कहा, जा तू मेरा एक स्वरूप लेके आ। उस टाइम पे संगत जी हमें स्वरूप नहीं मिलता था, एक छोटा सा पॉकेट स्वरूप मिल जाता था, इफ यू आर लकी। इट वाज नॉट लाइक व्हाट वी गेट टुडे, इट वाज नॉट लाइक दैट टाइम ओनली वन मिल गया तो बस दैट्स योर। और वो हमारे पास आज तक पड़ा हुआ है स्वरूप, छोटा सा। आई थिंक वो जलंधर मंदिर की फोटो है जहां तक मुझे याद है। सो स्वरूप लेके आए सेवादार, और एक ब्लैक पेन लेके आए। तो गुरु जी ने कहा, काला नहीं गोल्डन पेन लेके आ। तो वो गोल्डन पेन लेके आए, उन्होंने लिखा,
Diwan family, full blessings on the whole life. Guruji, 14th April 1997. And Sangaji, I didn't know Guruji ever knew our name. I thought at that time. But Guruji asked my dad, he says, Vimmi kithe hai? पापा ने कहा वो तो बॉम्बे हैगी है, कहते एक और स्वरूप लेके आ, फिर उन्होंने लिखा विमी ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी 14th April 1997, ये बैसाखी की टाइम उन्होंने दिया था। तो हम इतने एक्साइटेड कि वाओ गुरुजी ये ब्लेस की गुरुजी ने अपने हाथ से हमें लिख के दिया और ब्लेसिंग्स दिया। वो कुछ कहते थे तो वो सच होना ही होना है, सच होना ही होना है। तो लिख दिया तो आप सोचो वो कहाँ है। सो वी ऑल ब्लेस, समटाइम्स वी ऑल वी आर लो एंड डाउन समटाइम्स, बट जब ऐसा होता है तो हम वो स्वरूप को देखते हैं कि ना, जब गुरु ने ब्लेसिंग्स लिख दिया है ना, तो ये तो बहुत उच्च बात है। तो बहुत मेहर है उनकी, आई वुड से। संगत जी, बस एक ही करो कि आप आते रहो उनके पास, बहुत सिंपल है, आओ, डायरेक्ट कनेक्शन। ही नेवर, यू मे हियर व्हाटएवर सत्संग, यू मे गो थ्रू व्हाटएवर, बट गुरुजी सेड मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन करना। इट वाज नॉट वाया एवर। इसे जब मैं कभी कभी कहते थे, जब मैं चला जाऊंगा तो मेरे स्वरूप नाल, मेरे फोटो नाल गल्ला करोगे। फोटो कहते थे गुरुजी, कहते मेरे फोटो नाल गल्ला करोगे। तो हमें समझ ही नहीं आया, बिकॉज हम तो गुरु जी हमेशा हमारे साथ रहेंगे। बट एक हुआ, उन्होंने एक बार मुझे याद है चंडीगढ़ में कहा था, कहते मैं तुम्हें चांद में दर्शन दूंगा। सच्ची में तब समझ नहीं आई थी बात। तो एक बार, ये दिस इज अ फ्यू, मे बी अ डेकेड अगो और मोर, we were in Bombay, so we that time, I think this is before 2014-13, तब बॉम्बे में सत्संग नहीं होते थे। I don't think I was aware of the मंदिर at that time, जो कांदीवली में पहले था। So I was, my sister and I would finish our dinner by 5:30, and वो अपने अपने respective rooms में जाके हम दोनों को पढ़ने का शौक था। We would read books। मैं अपनी बुक पढ़ रही थी, सडनली मैंने बाहर देखा आसमान को, तारों को, मुझे देखना लाइक ए शेयर, मुझे बहुत अच्छा लगता है बचपन से। सो मैं देख रही थी और मैंने चांद देखा, फुल मून था, एंड मुझे कुछ फिगर दिखी चांद के अंदर। और मैं एक्चुअली उठ के बाहर तक गई, मैंने कहा ओ माय गॉड गुरुजी, एंड आई जस्ट बाउ डाउन एंड आई केम बैक एंड स्लेप्ट अगेन। आई मीन आई जस्ट ले डाउन अगेन, आई वाज रीडिंग माय बुक। आफ्टर फ्यू मिनट्स माय सिस्टर कम्स टू द रूम एंड शी हैज अ स्माइल ऑन हर फेस। शी सेज, डिड यू सी द फुल मून? मैंने कहा हाँ। एंड शी स्माइलिंग। आई सेड, डिड यू सी व्हाट आई सॉ? शी सेड, गुरुजी। आई सेड, या। शी टेल मी द प्रोफाइल। तो उसने मुझे प्रोफाइल बताया, एंड that's when we realized गुरुजी ने हमें दर्शन दिए थे, जो ही told us like long back in 90s, he told us मैं तुम्हें चांद में दर्शन दूंगा। समझ नहीं आता था संगत जी, सच्ची में नहीं समझ आता था, but when we experienced, we started believing way more कि हाँ, अब तो जिंदगी नहीं है। I don't think we know any other way to live but to be, just we always pray to him, गुरुजी अपने हुक्म में रखना, अपने से जोड़ के रखना, हुक्म में रखना। अप्स एंड डाउन आएंगे जिंदगी में, ये जिंदगी है, बट अगर गुरुजी हमारे साथ हैं, वो आपको निकाल देते हैं और वो हर पल हरे को दिखाते हैं। बहुत 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 मेहर है गुरुजी की। वी कैन लाइक honestly go on forever, but I think now my sister will share a little bit about her journey with Guruji, which has been beautiful, and I'll share again. Sangat ji, Jai Guruji, Jai Guruji. Guruji's immense grace that we are here. गुरुजी की इतनी मेहर है हम सब पर कि ये कहा जा सकता है कि कहने को कलयुग है, लेकिन हम सतयुग में रह रहे हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि हमारे जीवन पर है। मेरे जीवन का सार अगर मैं सोचूं तो जो मुझे कर्म से नहीं मिला वो कृपा से, लेकिन गुरुजी ने अपने समय पे कर्म भी कराए। This is the same time as my sister shared, 96। मैं कुछ महीने बाद, जब मेरे पेरेंट्स गए तो उसके कुछ महीने बाद मैं बॉम्बे से चंडीगढ़ विजिट कर रही थी, तो गुरुजी के हुक्म से मैं उनके दरबार में पहुंची। तो गुरुजी कहते हैं, जब तुम मेरे पास पहुंचते हो तो तुम्हारी फाइल खुल जाती है। एंड आई थिंक among my family I was the one जिसकी फाइल खुल गई। मेरा बहुत कामिक बैगेज था। गुरुजी ने मुझे 7 लाइफ टाइम्स दिखाए और कुछ जन्म के कुछ लोग और कुछ संगतों को मिलाया और मेरा कर्म उनसे नलिफाई कराया। गुरुजी कहते हैं कि मेरे नाल रह के कटोगे तो सोखा होएगा, एंड सच में सोखा था।
अगर मुझे खुद करने जाना होता तो शायद मैं ना निकल पाती उस दौर से। मैं बहुत योग क्रिया करती थी बहुत छोटी उम्र से ही, और आश्रम में रहना, और यू नो वेरी वेरी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड। लेकिन गुरुजी ने सब कुछ इतना सादगी से समझा दिया, अपने चरणों में बिठा के, लंगर प्रसाद करा के, अमृत पिला के, शबद गुरबानी सुना के, संगतों को मिला के, बड़े मंदिर बुला के, मतलब हर तरीके से इतनी सिंपल कर दी लाइफ, जो हमें विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस टू द पास्ट, जो हमारी कंडीशनिंग है या अपब्रिंगिंग है कि भगवान को पाना कितना मुश्किल है, गुरु जी ने इतना सिंपल दिखा दिया। लेकिन मैंने अनुभव नहीं किया, लेकिन उन्होंने, कहते हैं जैसे सुना है कि नींबू की तरह निचोड़ते हैं, तो वो भी शायद हुआ होगा, मैं मान सकती हूँ इस बात को। तो बहुत योग क्रिया करना, तो गुरुजी एक बार ऐसे अपने संगत जब लगी हुई थी, गद्दी पे बैठे थे, तो एक संगत उनके पास लेट आई। तो गुरुजी ने उनसे पूछा कि तू लेट क्यों आया है? तो उन्होंने कहा, गुरुजी जान ही जान, लेकिन कभी कभी वो लीला खेलते थे, ऐसे वो जानना चाहते थे संगत से वो क्या रिस्पॉन्स देते हैं। तो उन्होंने कहा, ऐसे ऐसे मैं हिज होलीनेस श्री श्री रविशंकर जी को मिलने गया था। तो गुरुजी ने पूछा, वो कौन है? Of course he knew. He knew it so very much. And he said, वो ऐसे ऐसे सुदर्शन क्रिया सिखाते हैं। गुरुजी कहते हैं, ओ की होता है? And he went on to explain that it's a breathing technique and blah blah blah. Guruji went into a deep deep pause and then he said what he said. As we all know, गुरुजी प्रवचन नहीं करते थे, एक लाइन में पूरे जीवन का ज्ञान आपके अंदर उतार देते थे। तो गुरुजी ने कहा, जो तुम, जो गुरुजी ने कहा वो मेरे जीवन में उतर गया। जो तुम रिद्धि सिद्धि क्रिया योग नाल करते हो, वो कुछ वेले वास्ते हुंदा हैगा। जो उतरों आंदा है, दैट इज फ्रॉम द सोर्स विच इज हिम, वो हमेशा वास्ते हुंदा है। एंड दैट वाज दैट। मेरी बड़ी ग्रेजुअली सारी प्रैक्टिसेस गुरुजी ने जैसे वीन ऑफ करा दी। उन्होंने मुझे ये नहीं कहा तुम छोड़ दो, मत करो, नेवर डिड ही से दैट। बट वो जो कहते थे और जो नहीं कहते थे, उसके बीच में जो हमें समझना होता था, वो हमारे ही समझ पर होता, या उनकी कृपा हुई तो वो समझ हमें डाल देते थे। तो सारा मेरा प्रैक्टिसेस छुड़वा दिया। और एक बार ऐसा भी हुआ कि मैं, एज अ सेड, श्री श्री के बाद मैं सदगुरु को फॉलो करने लगी अबाउट योगा, जस्ट अबाउट वेल बीइंग। तो मैंने गुरुजी को कहा, क्योंकि गुरुजी ने बहुत जल्दी हमें शरण में ले लिया था, और ये लास्ट उसके बाद की बातें, 97 के बाद की बातें हैं। तो मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी मैं मानती तो आपको हूँ, लेकिन मैं रास्ते उनके चलती हूँ, तो मेरे अंदर कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। तो मैं उनमें से हूँ कि अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ गई या कुछ मुझे रिजॉल्व करना है, तो मैं पूरा दिन रात गुरुजी के चरणों में बैठी रहती हूँ टिल आई एम डन विद इट। शायद मेरी वो स्वभाव थोड़ा पहले जिद्दी था, तो वो मुझे काम आ गया। पॉजिटिवली आई यूज्ड इट कि मुझे गुरुजी, आप, मैं उठूंगी नहीं आपके यहाँ चरणों से जब तक आप मुझे इस चीज से निकालोगे नहीं। और जिद भी ऐसी चीजों की जहां, जैसे मैं ये अनुभव बता रही हूँ कि गुरुजी मानती तो मैं आपको हूँ, लेकिन मैं उनके रास्ते चल रही हूँ। तो गुरुजी मुझे एक दिन रात को दर्शन देते हैं, स्वप्न दर्शन, और मुझे एक फॉरेस्ट में ले जाते हैं। बहुत सुंदर फॉरेस्ट, बहुत ही सुंदर, इतनी सुंदर, वहां जो देवी माँ को लाल, आई थिंक जसवंती के फूल या हिबिस्कस जिसको कहते हैं, वो थी, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। फुल ब्लूम्स, ह्यूज फ्लावर्स एंड ब्यूटिफुल गार्डन एंड पेवमेंट। और मैं अंदर जाती हूँ, और एक दरबार लगा हुआ है जहाँ गुरु जी की गद्दी लगी, एंड सदगुरु खुद फिजिकली वहां बैठे हैं। तो वेरी नेचुरली आई बाउ डाउन टू गुरु जी, नोइंग दैट ये तो गुरु जी की गद्दी, ये तो गुरु जी विराजमान। तो ये नहीं कि मैं सदगुरु को डिसरिस्पेक्ट करना चाहती थी या इग्नोर, नॉट एट ऑल, वो बिल्कुल मन में नहीं था। लेकिन गुरुजी ने ये मुझे, मेरी आत्मा का जो जरूरत थी, जो मैं चाहती थी, वो मुझसे करा दिया।
तो उसके बाद वो कॉन्फ्लिक्ट भी चली गई, कभी मुझे नहीं लगा, क्योंकि गुरुजी ही गुरुजी। और और इतना सिंपल हो गया कि कुछ करना नहीं था, जो वो कराना चाहते थे वो हो जाता था। तो इट वाज वेरी नाइस, मतलब रियली ब्लिसफुल। मैं ये नहीं कहूंगी कि हार्डशिप्स नहीं आई, बहुत हार्डशिप आई जब 97 96 97 में। लाइफ वाज गुड, इट वाज गोइंग ऑन वेरी वेल, लेकिन एज आई सेड मेरा कामिक बैगेज इतना था, कुछ महीनों बाद मेरी सेपरेशन हो गई मेरे हस्बैंड से। तो गुरुजी ने मेरी मदर को कहा कुड़ी की चांदी है, तो मामा ने कहा शी वांट्स टू कीप हर मैरिज ग्रेशियसली। तो गुरुजी ने, मेरे मन में ये था कि अगर मैरिज, जैसे इफ टू पीपल कम टुगेदर विद लव इन देयर हार्ट्स, they should separate also with love in their hearts. Why does it have to be disgraceful? लेकिन वो बात शायद मैं समझा नहीं पा रही थी, और इट वेंट द अदर वे। तो गुरुजी ने हुक्म दिया कि चंगा जे वकील करो, कुड़ी दे हक विच होएगा। मतलब उन्होंने शुरू करने से पहले ही जजमेंट दे दी। तो अब गुरु महाराज ने कहा है तो वो तो होना ही है, पूरी दुनिया हिल जाएगी लेकिन गुरु जी के वचन पूरे होते ही हैं। तो अब जब उन्होंने हुक्म दिया, तो हुक्म देने के साथ साथ मुझे हुक्म में रहने की शक्ति दी। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आई वॉज जस्ट नॉट अप टू इट। माई माइंड, माई एनर्जीज बट जस्ट नॉट गोइंग दैट वे। मैं सोचती थी अरे कल तक तो हम एक ही प्लेट में खाना खा रहे हैं, और अब मैं आई ड्रैग हिम टू द कोर्ट। नो नो, दिस डजंट वर्क फॉर मी। I just said that it has to be gracefully, we have to part very gracefully. But I think I had lessons to learn over those 11, 13 years. तो गुरुजी मुझे रात को दर्शन दे के ये भी बता जाते थे कि कल तेरा what do you call क्रॉस एग्जामिनेशन है, और तुझे ये सवाल पूछेंगे। मतलब वो क्या कहना है क्या, वो इतना उन्होंने मुझे ट्रेन कर दिया। और अब ऐसा हुआ कि पूरे 11-13 साल आप मानेंगे, अगर हमारे किसी के भी जीवन में इट्स समटाइम्स नॉर्मल, कंसिडर नॉर्मल, कि हम किसी से हमारी कोई रंजिश हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो हम उनसे नहीं बात करते या उनके बारे में कुछ अलग सोचते हैं, या जन्म निकल जाते हैं किसी को माफ करने में। लेकिन एक गुरु, मैं तो अब गुरु की आपको बात बता रही हूँ, और गुरु जी तो एज माई सिस्टर सीज रबों के रब, सच ये तो हर महालोकों के भी महामालिक, क्या कहें हम, है ना, शब्द शब्द ही नहीं है। तो एक पैराबल में हमेशा शेयर करती हूँ कि परमहंस योगानंद जी ने एक आई थिंक यूएस में उनके एक आश्रम में उन्होंने एक कैक्टस प्लांट लगाया था। तो जब वो पौधा लगाया तो उसमें कांटे नहीं हुए जब वो पौधा बड़ा हुआ। तो आप सोचिए, जब एक गुरु किसी जीवन को, प्लांट लाइफ को, चाहे कोई भी लाइफ को स्पर्श करता है, टच करता है, तो वो अपना डीएनए उसका बदल गया, ऑल्टर हो गया, और उससे अपना डिफेंस सिस्टम छोड़ दिया। क्योंकि गुरु इज ऑल अबाउट लव, एंड वो प्यार से देखो, उसके कांटे नहीं है। और वो मेरे जीवन का पूरा सार है कि गुरु जी ने मेरे अंदर वो मैल, वो हेट्रेड, वो डिसलाइक नहीं आने दी। गॉड फॉरबिड, आई मीन if Guruji had not taken me in his शरण, मैं डेफिनेटली, मेरी लाइफ ही नहीं होती, या मैं कुछ और रास्ते निकल गई होती, क्या डिजीज क्या होता, आई हैव नो क्लू, आई ड्रेड टू इवन थिंक अबाउट इट। सो ये बहुत ग्रेसफुली गुरुजी ने किया मेरे साथ। मैं आई एम डीपली, यू नो क्या कहूँ, ग्रेटफुल। आई कैन इवन एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड, जो गुरुजी ने जो किया और जो कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको few days ago, as this गुरु जी का जब हुक्म आया ये सत्संग शेयरिंग का, तो फादर साहब वाज सपोज टू शेयर। लेकिन कुछ दिन पहले, लास्ट ट्यूसडे की बात है, हम एक सत्संग में गए थे खार में। तो जैसे ही गुरु जी से आगे हली मैंने, तो गुरु जी के 3 वर्ड्स, ऑल्दो मुझे ना तो गुरु जी की आवाज सुनाई दी, लेकिन हुक्म उनका, मुझे ये पूरी तरह पता है उनका हुक्म। और मुझे लग रहा है जैसे कैपिटल में लिखा है नो मेडिकल हेल्प। तो मैं थोड़ा अलर्ट हो गई। मैंने कहा गुरुजी क्या कहना चाहते हैं, व्हाट अबाउट, व्हाट काइंड ऑफ नो मेडिकल हेल्प, एक्सक्यूज। तो मैं थोड़ा श्रिंक हो गई। मैं अंदर आई तो सत्संग शेयर कर रही थी कोई संगत कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने किसी का प्रोस्टेट कैंसर ठीक कर दिया, और किसी ने सर्जरी कराई, तो
उनकी मतलब ही कुड नॉट सर्वाइव दैट। तो मैंने लगा डैड प्रोस्ट्रेट है, तो लेकिन गुरुजी ने तो उस टाइम मना किया था कि मम्मा ने पूछा था गुरुजी ऐसे ऐसे पापा को जैसे ये इशू है तो नीड वी सर्जिकली इंटरवीन। गुरुजी ने कहा कोई लोड नहीं, कल्याण कितना। तो हमें पता था कि ये तो गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी है, तो हम सोच ही नहीं रहे थे ऐसी कोई बात। लेकिन गुरुजी ने जो सिखाना सुनाना था वो किया। एनीवे आई केम बैक होम द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग। जो हमारे यहाँ घर में सेवादार हैं, उन्होंने उनको गुरुजी ने दर्शन दिए और कहा मैनू एप्पल चढ़ा। जैसे गुरुजी को हर रोज फल प्रसाद का ऑफरिंग होती है, उन्होंने गुरुजी ने उसको हुक्म दिया कि तू मैनू एप्पल चढ़ा। तो एप्पल्स ऑफर हुए एंड माय सिस्टर वेरी जोकिंगली इज टेलिंग गुरुजी डज इट मीन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एंड that was that. Now, after another, I think it was Thursday now, Tuesday, Wednesday, Thursday. Yeah. Thursday, एक सत्संग के बाद जब हम घर आए रात को, तो पापा को थोड़ा इंडाइजेशन का इशू हो रहा था कुछ महीनों से। तो वी वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज ऑल अबाउट। एंड वो फिर नहीं खाते थे, ठीक हो जाते थे, हॉट वाटर। सो इट वाज गोइंग ऑन फॉर अ व्हाइल एंड वी डोंट रियली गो द मेडिकल वे। हम बड़ा नेचुरली या थ्रू आयुर्वेदा हम अपने आप को हील कर लेते। गुरु जी की इतनी कृपा है कि सही रास्ता वो सही समय पे दिखा देती है एंड वी आर एबल टू गो बाय दैट। अब जब रात को डैड को थोड़ी इंडाइजेशन हुई, डिस्कम्फर्ट हुई, तो अराउंड 1 o'clock in the night he started going to the washroom. तो थोड़ी देर में ही सेज मुझे बहुत डिस्कम्फर्ट हो रही है, आप मुझे शोधी हर दो, वो जो गुरुजी ने ब्लेस की है, एक आई थिंक ब्लोटिंग के लिए एक दवाई है आयुर्वेद में, वो दो। तो मैंने जैसे ही उनके हाथ में रखी, और उन्होंने खाई नहीं अभी, लेकिन उनका सर एकदम पीछे चला गया और his eyes rolled up and his jaw shrunk and his BP dropped immediately, which I didn't understand medically then. I frantically called my sister. She flies for an airline. She was just entering the aircraft, and I said, "You come back. It's not seeming very nice and good. So we need to intervene, here." So that day, that was Thursday. आप मानेंगे, with Guruji's grace, Papa keeps very good health, 87 years plus. यहाँ बॉम्बे में बहुत सत्संग होते हैं, एज वी ऑल नो। अगर दिन में 2 या 3 सत्संग भी हैं, गुरुजी के या मंदिर भी जाना हो, he is able to go sit through. He doesn't even stretch his legs. I mean, doing really good health wise. लेकिन उस दिन वो 40 odd times he had to use the washroom. Now हमारे जो यहाँ गुरुजी कह के गए, गुरु परिवार ही काम आएगा। यहाँ गुरुजी की कोई संगतें आई, उन्होंने कहा उनको मेडिकल वी मस्ट इंटरवीन। तो मैं आई टुक अ स्टैंड, ऐसे नहीं, गुरुजी ने तो हुक्म दिया नो मेडिकल हेल्प, हाउ डू वी बाईपास दैट, ये तो नहीं हो सकता। तो मैं बहुत कॉन्फ्लिक्ट में आ गई। तो और वो वहां फ्रेंटिकली दे आर ट्राइंग टू कॉल डॉक्टर्स एंड ऑल, और मैं यहाँ खड़ी हूँ और मुझे दिख रहा है कि पापा इज नॉट डूइंग वेल। सो आई बाउ डाउन टू गुरुजी हियर और मैंने गुरुजी को अरदास की। मैंने कहा गुरुजी ऐसा रास्ता दिखाएं आप कि आपके हुक्म का मान सम्मान भी हो जाए और रास्ता भी निकल जाए। So this Sangat Meher aunty, she comes right in my face and she blares literally. She says, आपको हुक्म दिया ना, मुझे तो नहीं दिया, I'm calling the doctor. So she called the doctor. For that time, I think it was Guruji's hukam and Guruji's guidance, and it was the decision to be made. डॉक्टर आए, उन्होंने कहा इनको एडमिट करो, डिहाइड्रेट हो जाएंगे तो और कॉम्प्लिकेशंस होंगी। एंड इमेजिन 40 प्लस ऑफ टाइम्स गोइंग टू द वॉशरूम एंड नॉट गेटिंग डिहाइड्रेटेड। और इतनी शक्ति उनकी आवाज में, डॉक्टर कह रहे हैं कि आप तो बिल्कुल नॉर्मल बोल रही हैं, ये क्या है हो रहा है। सिर्फ इनकी दी हुई शक्ति से वो he could survive that day. And then we hospitalized him, and then he's come back home with his blessings. कल आए हैं and he's doing well and good. तो आप गुरुजी आपको वार्न कर देते हैं, अलर्ट कर देते हैं, हुक्म में रखते हैं, उस चीज से आप निकलते हो। आप उसको कह सकते हो 10%, 1%, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस अबाउट इट एंड हाउ यू परसीव इट, और वो निकाल के बाहर ले आते हैं। तो शुक्राने ना निकलेंगे तो क्या निकलेगा? सॉरी।
हाँ, तो जब मैंने हाँ जी, ये सॉरी मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना भूल गई कि जब पापा की आईज रोल अप हुई है वो, तो गुरुजी का जल प्रसाद था मेरे हाथ में यहीं पास। तो मैंने उनके सिर पे डाल दिया और मुंह में भी डाल दिया और एकदम ही रिवाइव्ड। सो ये जो अमृत, गुरुजी का जल प्रसाद है जिसको हम अमृत कहते हैं, मतलब मैं आपको सिर्फ अपना भाव प्रकट कर रही हूँ कि वो महाअमृत है, वो जीवन दे देता है, जन्मों का क्या क्या निकाल देता है। तो इसको, इसकी बहुत मानता है इसको। सर आंखों पर गुरुजी ने जो भी है वो कर रहे हैं, हमारे लिए, सबके लिए कर रहे हैं। ये दिख रहा है कैसे संगतें जुड़ रही हैं एक्सपोनेंशियली पूरी दुनिया में। सो एक बार ऐसा और हुआ कि गुरुजी अपने संगत में थे और हम जब 33 में बैठते थे बहुत कम संगत थी, लेकिन एक किसी का घर था वहां, कोई डॉक्टर्स, मुझे याद नहीं, एन सिंह, सॉरी मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा। तो जब हम संगते बैठी हैं, गुरुजी की जैसे खुशबू आ रही है, तो यूजुअली क्या होता है कि फ्रेग्रेंसेस मर्ज हो जाती हैं, ना, ओवरलैप हो जाती हैं। और लेकिन गुरुजी की जब खुशबू आती थी तो मुझे जैसे सैंडलवुड की आई, किसी को रोज की आई, या कुछ, हम फूलों की खुशबू इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें वो समझ आती है, वो फूलों की खुशबू, यू नो, वी हैव एक्सपीरियंस्ड दैट। लेकिन वो खुशबू उनसे भी बहुत कोई ऊपर कुछ, जैसे सचखंड की खुशबू है और बहुत शीतल, इट कम्स विद अ वेरी कूल फीलिंग और सेंसेशन। तो हम ये एक्सपीरियंस कभी किसी से शेयर नहीं करते क्योंकि मतलब ये एज, वो हमारा अनुभव होता था और वहां हम बिल्कुल बात नहीं करते थे और हमें किसी का नाम नहीं पता होता था। और मैं ये सबके लिए बोल रही हूँ कि हमारी तब भी और आज भी सबकी यही पहचान है सबसे ऊंची, चाहे हमने कितने नाम और शोहरत कमा ली हो, कि हम सब गुरु जी की संगत हैं। तो आफ्टर मेनी ईयर एक और गुरु जी की पुरानी उस टाइम की संगत है, एंड शी वैलिडेटेड दैट, नॉट दैट आई वाज सीकिंग वैलिडेशन फॉर दिस। उन्होंने कहा गुरु जी जब एक बार गद्दी पे बैठे थे तो यू नो उनकी उन मौज आई और उन्होंने बहुत अलग अलग फ्रेग्रेंसेस आई उनके अंदर से। तो किसी को कोई और फ्रेग्रेंस आ रही है, किसी को क्या। तो मुझे वो अपना जवाब मिल गया जो मुझे था कि अच्छा, लोग कहते हैं रोज की है, नहीं मुझे तो सैंडलवुड की आ रही है, नहीं मुझे तो मोगरा की आ रही है, मुझे तो बहुत अलग खुशबू आ रही है। किसी ने कहा बहुत गर्म हवा आती थी उनकी खुशबू के साथ, मैंने कहा नहीं मुझे तो ठंडी लगती थी। तो सबका अनुभव अपना अपना है और सबका अनुभव नहीं सच है, वो उनका सच है, ये मेरा सच है। तो इसमें सही गलत वाली कभी बात, जिक्र ही नहीं होता था। इतनी महक, इतनी महक, वो महक हमारे अंदर रहती थी, जैसे मतलब जैसे गुरुजी हमारे अंदर ही समा गए हो या हम गुरुजी के अंदर समा गए हो, मोर लाइक इट, है ना। तो इट्स ऑल द सेम एंड वी कैरी दैट फीलिंग एंड दैट कॉन्फिडेंस कि भगवान हमारे साथ चल रहा है या वो हमें चला रहे हैं, and we are able to go through our lives gracefully. We're conquering a lot of other battles that we all go through sometime or the other. तो और क्या कहें, टाइम एंड अगेन यही होता है कि मुझे नहीं पता, मैं ऐसा सोचती हूँ कि कर्मों का हिसाब होता तो शायद मैं ना खड़ी हो पाती उनके आगे, उनकी कृपा की दृष्टि पड़ी तो मैं, नो, आई वाज एबल टू। तो मेरे मुझे बहुत हेल्थ इश्यूज होते थे और एंजाइटी हो जाती जब मेरी डिवोर्स केस चल रहा था। तो मुझे रात को दिखता था कि गुरुजी जैसे मैं जमीन पे बैठ जाती थी, यू नो, व्हाइल दैट एंजाइटी अटैक वुड हैपन, आई वुड हैव गैलन्स ऑफ वाटर, गैलन्स। तो ऐसे जमीन पे बैठी हूँ, गेटिंग वेरी एंग्शियस और स्वेटिंग। तो गुरुजी भी मुझे एग्जैक्टली वैसे बैठे हुए दिखते थे और बहुत पानी पी रहे हैं। तो मैं सुबह उठती थी, मैं सोचती थी अच्छा गुरुजी शाम को जाके मैं पूछूंगी कि मुझे तो जो होता है होता है, आपको क्या होता है। ना तो सच मैंने सुना था कि गुरुजी अपने ऊपर ले रहे थे वो सब, ना मुझे पता था। अगर मुझे पता होता तो आई वुड हैव इंश्योर्ड कि आई नो गुरुजी इज अबव सफरिंग एंड ऑल ऑफ दैट। बट बट इफ ही शोइंग मी दैट, देन डेफिनेटली अंदर मन में मन खराब होता था ऐसा सोच के।
लेकिन वहां जाके टोटली हम ब्लैंक हो जाते थे. इट वाज एवरीथिंग वाज सो नाइस एंड ब्लिसफुल. हम भूल ही जाते थे हमें कोई दुख है या कोई बीमारी है या कुछ है. कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं. सो ऐसा बहुत कुछ, बहुत कुछ. एक बार एक बार ऐसा हुआ कि मेरी और मेरी सिस्टर की थोड़ी अनबन हो गई एंड वी वर आर्ग्यूइंग अबाउट समथिंग. तो अब हम गुस्से में हैं दोनों, और गुस्से में कोई फोन नहीं उठाता. उसी टाइम मेरा फोन बजता है, एक संगत का फोन आता है. अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं गुरुजी को उस वक्त याद भी नहीं कर रही, लेकिन गुरुजी का तो दृष्टि है ना हर वक्त हम सब पर. सो द संगत कॉल्स एंड शी सेज, गुरुजी कह रहे हैं कि बहनों को कहो लड़ना बंद करें और मेरे सत्संग में आ जाए. वुड यू बिलीव दैट? मतलब व्हाट टू से, व्हाट टू मेक ऑफ दिस. हर पल हम सबको देख रहे हैं, हमारे हर एक्शन को, हर थॉट पे उनकी नजर है. सो आते रहे, गुरु के चरणों में बैठे, और जो है यही है. मुझे गुरुजी ने बहुत यंग एज में बहुत कुछ दिखा दिया. आई वाज लिविंग ओवरसीज. आई सीन सीन सो मच इन लाइफ. मैं घूम फिर के पूरी दुनिया में आके यही कहूंगी कि जो इनके चरणों में है कहीं नहीं है, जरूरत भी नहीं है कहीं और कुछ और जानने की या कहीं और जाने की. जो मिलना है यही मिलना है. और एक और बहुत सेंसिटिव सत्संग है. और अ, मुझे कई बार लगता है कि क्यों, आई वुड नेवर से दोज वर्ड्स अगेन. सो भैया passed away. Our elder brother passed away in 2018. तो ऐसा हुआ था बिफोर 2018 कि गुरुजी ने मुझे बहुत विजन्स दिखाए, बहुत दर्शन दे दे के कि भैया विल गेट ओके, एंड ही डिड गेट ओके इन बिटवीन. और मुझे लग रहा था भैया टोटली ठीक हो जाएंगे एंड लाइफ विल बी रोजी एंड गुड. अब ये हुआ कि एक दिन गुरुजी ने दिखाया, वो ऐसे लेटे हुए हैं, और गुरुजी ना बहुत पिटीट लगते थे. पिटीट इज एक्चुअली नॉट द राइट टर्म. गुरुजी बहुत डेंटी से, पतले से लगते थे. तब मैं 96 की बात करूं. तो वो लेटे हुए थे और मैं उनकी चरण दबा रही हूँ, और मुझे दिखता है कि मेरी सिस्टर और उसकी फ्रेंड बेबू बाहर खड़े होकर दे आर यापिंग. और मैं मन में सोच रही हूँ कि अरे गुरुजी अंदर लेटे हुए हैं और ये क्या बातें क्या कर रही हैं बाहर. उनको गुरुजी के पास से होना चाहिए सेवा में. एंड suddenly Guruji gets up from the bed and he comes and sits on the floor next to me. And he has mortar and pestle in his hand and he's crushing this. जैसे आयुर्वेदा पत्तों की कोई दवाई नहीं बनाते, जड़ी बूटियों की. He's doing that. तो गुरुजी ने मुझे कहा, देखो टेस्ट कैसे लेते हैं. हाँ, हर हर बात में यू हैव टू बी सो हाईली अवेयर. गुरुजी आपको किस वक्त पकड़ ले, आपको निकालते नहीं हुई हैं. तो गुरुजी ने कहा, ये दवाई मैं तेरे भरा वास्ते लास्ट टाइम बना रहे हैं हैगा. तो मैंने कहा गुरुजी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप उनको ठीक कर दोगे. एंड ठीक किया, नो डाउट ठीक किया भैया को. ही वाज इन एंड आउट ऑफ द हॉस्पिटल. और उनको उनका जीवन बख्शा, उनको बहुत साल दिए, लेकिन फाइनली ही पास्ड. नाउ आई वाज वेरी वेरी क्लोज एंड वेरी हर्ट. लाइक I always felt, I have two fathers. मेरे एक father साहब and my brother is also like very protective and really loved and cared. And he still does, I know, wherever he is. गुरुजी के चरणों में ही है. तो मैं अब गुरुजी के पास आई, चंडीगढ़ में मैं बैठी थी और मुझे नींद नहीं आती थी उन दिनों. तो गुरुजी का दरबार लगा हुआ है चंडीगढ़ वाले घर में. तो वहां पर उनकी गद्दी के पास में आई और मैंने कहा, गुरुजी मैं कल बॉम्बे जा रही हूँ और बॉम्बे में सत्संग होते हैं बहुत. प्लीज आप मुझे सत्संग में मत बुलाना, क्योंकि आप बुलाओगे तो मुझसे रुका नहीं जाएगा. और अगर मैं आई आपके सत्संग में और मैं चरणों में बैठी तो मैं झूठी बन के नहीं बैठना चाहती, क्योंकि अब मैं आपको नहीं मानती. अभी मेरे मन में ऐसा चल रहा है कि मैं आपको नहीं मानती हूँ, लेकिन ये मेरा आपसे वादा है कि मैं अगले जन्म में जरूर आपके पास आऊंगी. लेकिन इस जन्म का आपका और मेरा लेना देना हो गया. And that was that. And I was leaving on a very sad note. I was coming back to Bombay knowing that my brother's not there anymore. And the whole family was very low and down.
आप मानेंगे, इतनी गुरु की कृपा, इतनी कृपा कि उसी शाम को सुखी आंटी, हम सब जानते हैं, उनको गुरुजी ने हुक्म दिया, शी वाज टू गो फॉर अ वेडिंग टू टर्की and she was doing shopping in sector 17 or somewhere, and she says गुरुजी ने हुक्म दिए, I need to come over, and गुरुजी ने कहा दीवान के घर जाओ। अब वो आई, वो थोड़ी देर के लिए आए थे क्योंकि उनके पास सच में समय नहीं था, लेकिन गुरुजी ने उनको वो उठने ही नहीं दिया बहुत घंटे, और उन्होंने बहुत सत्संग सुना। वो सत्संग आप जरूर सुने उनके जीवन के डायरेक्टली, लेकिन उन्होंने कहा गुरुजी को, उन्होंने कहा गुरुजी आप कहते हो ना कि मुट्ठी भर संगत है, तो जब आप चुनोगे वो मुट्ठी भर संगत, तो प्लीज आप मुझे अपने साथ ले जाना, मुझे छोड़ के नहीं जाना। तो ऐसे बहुत सारे सत्संग हुए। उस हर सत्संग के बाद जब वो जाने लगे और जब मैं रात को गुरुजी के पास वापस चरणों में आके लेटी, तो मुझे ये गुरुजी ने रियलाइज कराया कि भाई छूटा तो छूटा, गुरु छूटा तो सब छूटा। तो मेरे मन में वो इंस्टेंट बदलाव आया। एंड टुडे आई ड्रेड टू थिंक कि अगर गुरुजी ने मुझे नहीं वापस शरण में लिया होता, जो मैंने कहा उनको और जो मैंने अरदास की और उन्होंने सुन ली होती, तो मेरा जीवन कहाँ होता, होता भी कि नहीं होता। जैसे जैसे हमें पता है कि कई संगतों को पहली बार भेज देते थे और वो 20-30 साल बाद आते थे। कई बार एक संगत को पहले दिन ही कल्याण करके हमेशा के लिए कह देते हुन तू जा, तेनू लोड़ ही नहीं आती। तो उनका कुछ पता नहीं होता था। हमें क्या पता किसका क्या करना, उन्होंने तो कृपा करनी है। तो ऐसे बहुत सत्संग है जीवन और उसके बियॉन्ड जो भी, और बहुत कुछ। हाँ, इतना जरूर है मैं कहूंगी कि जो भी गुरुजी के इर्द गिर्द हो रहा है वो हमारा भाव है, हमारा प्यार है अपने गुरु के लिए। चाहे वो कुछ भी हो, है ना, हम कभी जॉब, कभी शादी, कभी बच्चे, कभी जीवन के जो भी सुख होते हैं वो गुरुजी से, गुरु जी को अरदास करते हैं। लेकिन वो गुरुजी दे भी दें तो वहां रुकना नहीं, क्योंकि गुरुजी कहते थे जो मैं देना है कोई लैन तैयार नहीं। अब वो क्या देने आए हैं और हम क्या ले सकते हैं, वो उन्हीं को पता। Be available to his grace, receive it. We are so blessed, गुरुजी इस चोले में आए और हम इस धरती पे हैं, ह्यूमन फॉर्म में हैं, and we are able to receive। हम थोड़ी इतनी तो समझ है कि ये भगवानों के भगवान हैं। तो सॉरी, आई थिंक आई विड्रू फ्रॉम दैट सत्संग। तो गुरुजी जब उन्होंने वो बैठे थे गद्दी में, तो एक महापुरुष आए उनकी संगत में और उन्होंने देखा कि गुरुजी के अंदर से ना एक लाइट निकल रही है, और वो लाइट किसी को छू रही है संगत में और किसी को बाईपास कर रही है, नहीं छू रही। तो महापुरुष ने somehow he gathered courage and he went up to Guruji after that and he says, आप कैसे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, आप तो भगवान हो, भगवान थोड़ी डिस्क्रिमिनेट करता है कि उसको आपकी लाइट छू रही है उसको नहीं छू रही। तो गुरुजी ने कहा मैं तो देन वास्ते आया, तुसी लैन वाले बनो। एंड दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड कि गुरुजी देने के लिए आए हैं। हम अपना पात्र तो बड़ा कर सकते हैं, गहरा कर सकते हैं, और वो कैसे होगा, क्या करना होगा, वो गुरुजी आपको डायरेक्ट गाइड करते। जैसे मैंने कहा मुझे योगा क्रिया मैं कर रही थी, यस उसका महत्व है, मैं आज भी कहती हूँ योग क्रिया का महत्व अपनी जगह है। लेकिन जब गुरुजी ने उससे कुछ और ही ऊपर कुछ दे दिया, तो फिर व्हाई विल यू गो बैक टू दैट राउट, राइट? इट सर्व्ड मी फॉर दैट टाइम एंड इट स्टिल होल्ड्स वेरी हाई वैल्यू। Yet I choose to be in Guruji's grace like this, keeping it very simple, keeping it very humble. मैं तो सच बताऊं, मैं कई बार फूल भी नहीं रखती गुरुजी के आगे कि आप मुझे ही ब्लूम होने दो, अब आप प्लीज ये फूल डेकोरेशन अब मुझसे नहीं होता। लेकिन ये भाव है, प्यार है, डेफिनेटली। पहले मैं सच बता रही हूँ, हाउ आई यूज टू जस्टिफाई कि ओ ये फूल कितना ब्लेस्ड है, गुरुजी के चरणों में जाएगा तो इसको मोक्ष मिल जाएगा। अरे हु एम आई टू डिसाइड दैट कि मैं वो फूल तोड़ूं, प्लक करूं, उसको अपरूट करूं, उसके जीवन से उसको दूर करूं और गुरुजी के चरणों में लाऊं? हु एम आई? आई विल नॉट डिसाइड हिज मोक्ष, गुरुजी विल डिसाइड।
एंड गुरुजी सेड मुझे नहीं पता किसी कब कहा था, लेकिन एक सत्संग मैंने सुना था जहाँ गुरुजी ने खुद कहा कि वो गुरुजी के लिए फूल ले गए तो गुरुजी ने मना किया डायरेक्टली, मेरे लिए फूल मत लाया करो। तो उन्होंने कहा क्यों गुरुजी, आपको फूल नहीं पसंद? तो गुरुजी ने कहा नहीं, मैनू लगे हुए पसंद है। तो अब गुरुजी ये तो नहीं कह रहे आप मत तोड़ो या आप ये मत करो, लेकिन आपको समझना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो लेकिन मैं इतना जरूर मानती हूँ, हमारा अपरंपार प्यार है गुरु के लिए, तो हम उनको अपना जीवन भी दे दें, अपने इस पूरे हर बाग के फूल भी ले आए, हर लोग से सब सब कुछ ले आए, तो भी कम है। बट वी होल्ड दिस फीलिंग दैट वी वांट टू डू दिस फॉर आवर गुरु। इनकी कृपा में रहें, इनके चरणों से जुड़े रहें, सब कुछ यही, सब कुछ। I think that should be all for this time, and गुरुजी का हुक्म आज्ञा हुई तो फिर जल्दी मिलेंगे through this platform। गुरुजी के आश्रम का बहुत बहुत हम कृतज्ञ फील कर रहे हैं to have this opportunity। मैं पूरे दीवान परिवार की ओर से सबको हम प्रणाम भेजते हैं। जय गुरु जी।